بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 113 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم قطر کے حصہ اول پر گفتگو کریں گے۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملائیشیا کے حصہ 2 پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ تھی اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم قطر کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک قطر کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافیائی خدوخال ہوگا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ملک قطر کی آبادی ہوگا۔ 5ویں پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی زبانیں اور 6ٹھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے مذاہب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ملک قطر کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس کے محل وقوع اور اس کے جغرافیائی خدوخال کو پڑھیں گے۔ ملک قطر کا نام اس کے قدیم باشندوں کے ترائی کی مناسبت سے اسے دیا گیا ہے۔ یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس ملک کے پڑوسی ممالک کے بارے میں بات کریں تو اس کے مغرب کے اندر سعودی عرب واقع ہے، جنوب میں عرب امارات واقع ہے اور جبکہ بحرین اس سے 60 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع ہے۔ قطر ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ہے جو خلیج فارس کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ قطر کی شمالاً جنوباً لمبائی 185 کلومیٹر یعنی 115 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی 89 کلومیٹر یعنی 55 میل تک ہے۔ قطر کے 3 جانب خلیج فارس ہے اور اس کا 115 میل لمبا خشکی کا علاقہ خلیج فارس میں اندر تک چلا گیا ہے۔ ملک کا زیادہ علاقہ ہموار، خشک، بنجر، پتھریلا اور ریگستانی ہے۔ جنوب مشرق میں زیادہ رقبہ ریتیلا ہے جبکہ شمال میں کچھ نخلستان اور مغرب میں کم بلندی والی پہاڑیاں ہیں۔ اس کی 35 میل لمبی سرحد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ملتی ہے۔ ساحل کی لمبائی 378 کلومیٹر یعنی 235 میل ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلائیڈ کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس کو کور کیا جس کے اندر محل وقوع اور جغرافیائی خدوخال شامل تھا۔ اب چلتے ہیں سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک قطر کے رقبے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ملک قطر کا رقبہ 11,437 مربع کلومیٹر یعنی 4,416 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت دوحہ ہے جو اس ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس ملک کے بڑے ٹاؤن میں الریان، الوکراہ، ام سلال، ارخور، ام سعید، دخان، الکرانہ، ام باب اور الزبارح وغیرہ شامل ہیں۔ ملک قطر کا بلند ترین مقام طوبائر الحامر ہے جس کی بلندی 103 میٹر ہے۔ اس ملک کی اگر آب و ہوا کے متعلق بات کریں تو اس کی آب و ہوا خشک، گرم، مرطوب ہوتی ہے۔ مئی تا اکتوبر سخت گرمی اور رطوبت کے مہینے ہیں۔ ملک قطر کے پاس 4 بڑے ہوائی اڈے ہیں اور اس ملک کی قومی فضائی کمپنی قطر ایئر ویز کے نام سے کام کر رہی ہے۔ دوحہ، ام سعید، حلول اس کی بڑی بندرگاہیں ہیں۔ 1000 میل لمبی سڑکیں ہیں جبکہ ملک قطر کے پاس ریلوے موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک قطر کی آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قطر مشرق وسطی میں ایک چھوٹا لیکن تیزی سے ترقی کرتا آبادی والا ملک ہے۔ تقریباً 2.8 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ قطر دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ممالک میں سے ایک ہے۔ قطر کی آبادی کے بارے میں بات کریں تو 2015 کی مردم شماری کے مطابق قطر کی تقریباً 91% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جبکہ بقیہ 9% قطری شہری ہیں۔ تارکین وطن کی اکثریت کا تعلق جنوبی ایشیا جن میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش شامل ہے یہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد شمالی افریقہ یعنی مصر اور مشرق وسطی یعنی سعودی عرب اور کویت کا نمبر آتا ہے۔ غیر ملکیوں کی اعلیٰ فیصد اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ قطر میں تیل اور گیس کی ایک بڑی صنعت ہے جس کے لیے ایک قابل ذکر افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ تاریخی طور پر قطر کی آبادی نسبتاً مستحکم رہی ہے، تاہم حالیہ برسوں میں ملک کی اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی وجہ سے آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے پڑوسی ممالک سے روزگار کے مواقع تلاش کرنے والے تارکین وطن کارکنوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔
मजीद बरा कतर की जानिब से 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के नतीजे में इवेंट से मुतालिक तामीराती मंसूबों पर काम करने वाले आरजी तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। कतर की आबादी के लिए मुस्तकबिल के तखमीनों का जायजा लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीजन के तखमीने के मुताबिक कतर की आबादी 2030 तक 3.5 मिलियन और 2050 तक 4 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है। इस इजाफे की बड़ी वजह मुसलसल नकल मकानी और कुदरती आबादी में इजाफा है, जिसकी वजह कतरी खवातीन में आला शरह पैदाइश है। ताहम आबादी में इतनी तेजी से इजाफे की पायदारी और बुनियादी ढांचे और वसाइल जैसे पानी और रिहाइश पर इसके असरात के बारे में खदशात पाए जाते हैं। कतर की जुबानों के बारे में बात करते हैं। कतर की सरकारी जुबान अरबी जुबान है और ये आबादी की अक्सरियत बोलती है। अरबी एक असामी जुबान है जो अरबी रस्मुल खत का इस्तेमाल करती है और इसकी एक भरपूर अदबी रवायत है जो 1000 साल पुरानी है। कतर में अरबी तमाम सरकारी सलाहियतों जैसे हुकूमत, तालीम और मीडिया में इस्तेमाल होती है। कतर की दूसरी जुबानों पर बात करते हैं। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो कतर में बहुत से जुनूबी एशियाई बाशिंदे बोलते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आने वाले। उर्दू एक हिंद आरियाई जुबान है जो फारसी अरबी रस्मुल खत का इस्तेमाल करती है। कतर में जुनूबी एशियाई कम्युनिटीज में उर्दू आमतौर पर समाजी और सकाफती तनाजुर में इस्तेमाल होती है। एक और अहम जुबान मलयालम है। मलयालम एक दरावड़ी जुबान है जो हिंदुस्तान से आने वाले कुछ तारिकीन वतन के जरिए बोली जाती है, खासतौर पर वो जो इंडिया की जुनूबी रियासत केरला से ताल्लुक रखते हैं। फिलिपाइनी जुबान कतर में बहुत से फिलिपाइनी तारिकीन वतन बोलते हैं, खासतौर पर फिलिपाइन के विजिया इलाके से ताल्लुक रखने वाले। फिलिपाइनी जुबान लातीनी रस्मुल खत का इस्तेमाल करती है। फिलिपाइनी जुबानें आमतौर पर कतर में फिलिपाइनी कम्युनिटीज के दरमियान समाजी और सकाफती सियाक व सबाक में इस्तेमाल होती है। जी तलबाई कराम, हमारे सबक के ये 2 पॉइंट जिसके अंदर हमने मुल्क कतर की आबादी और इसके अंदर बोले जाने वाली जुबानों पर गुफ्तगू की मुकम्मल होता है। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब जिसके अंदर हम मुल्क कतर में राज मज़ाहिब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की। जैसा कि इस्लाम कतर का सरकारी मजहब है और आबादी की अक्सरियत इस पर अमल पैरा है। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जिसकी इब्तिदा 1400 साल पहले अरब में हुई। कतर के दीगर मज़ाहिब के बारे में अगर बात करें तो ईसाईयत का दूसरा नंबर आता है। कतर में आबादी की एक छोटी सी अकलियत के जरिए ईसाईयत पर अमल किया जाता है। बुनियादी तौर पर फिलिपाइन, हिंदुस्तान और नेपाल जैसे ममालिक से आने वाले तारिकीन वतन ईसाई हैं। इस खित्ते में ईसाईयत की एक तवील तारीख है जो इब्तदाई ईसाई बरादरियों से मिलती है जो इस्लाम की आमद से पहले जजीरा नुमा अरब में मौजूद थी। कतर में ईसाई अपने अकीदे पर अमल करने के लिए आजाद हैं। कतर का एक तीसरा मजहब हिंदू मत है। कतर में आबादी की एक छोटी अकलियत के जरिए हिंदू मजहब पर अमल किया जाता है। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और नेपाल से आने वाले तारिकीन वतन इस मजहब पर अमल पैरा हैं। हिंदू मत एक कदीम मजहब है जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में 4000 साल पहले हुई थी। कतर में हिंदू अपने अकीदे पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। कतर का एक और अहम मजहब बुद्ध मत है। बुद्ध मत की पैरवी कतर में आबादी की एक बहुत छोटी अकलियत के जरिए की जाती है। बुनियादी तौर पर श्रीलंका और थाईलैंड से आने वाले तारिकीन वतन इस मजहब पर अमल पैरा हैं। बुद्ध मत एक कदीम मजहब है जिसकी इब्तिदा 2500 साल कबल हिंदुस्तान में हुई। अजीज तलबा, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने मुल्क कतर के मज़ाहिब के बारे में गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब जिसके अंदर हम मुल्क कतर के वसाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कतर के तेल और गैस के जखायर की। कतर कुदरती गैस और माया कुदरती गैस यानी LNG के दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुनंदगान में से एक है। मुल्क के तेल और गैस के वसी जखायर 1940 की दहाई में दरियाफ्त हुए थे और वो तब से कतर की माइशत का एक बड़ा मुहर्रिक रहा है। तेल और गैस की सनत कतर की GDP और बरामदात का एक अहम हिस्सा है और इसने मुल्क को इक्तिसादी तरक्की की आला सतह हासिल करने के काबिल बनाया है। नंबर पर बात करते हैं कतर की माहीगीरी की। माहीगीरी सदियों से कतरी सकाफत का एक अहम हिस्सा रही है और ये आज भी एक अहम सनत बनी हुई है। कतर दुनिया के चंद अमीर तरीन माहीगीरी के मैदानों का घर है और इसकी माहीगीरी घरेलू इस्तेमाल और बरामद दोनों के लिए समुद्री गजा का एक बड़ा जरिया है। कतर के माजी में पर्ल डाइविंग भी एक अहम सनत थी क्योंकि ये मुल्क किसी जमाने में मोतियों का बड़ा प्रोड्यूसर था। अगरचे हालिया बरसों में मसनूई मोतियों की दस्तयाबी की वजह से पर्ल डाइविंग में कमी आई है, लेकिन ये कतरी विरसे का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। कतर का एक और अहम जरिया इसकी ज़राअत है। ज़रूरी पैदावार बड़ी महदूद है और अहम फसलें गंदम, टमाटर, सब्जियां,
खजूरें और जौ हैं। कतर में सब्जियां जरूरत से ज्यादा पैदा होती हैं और बरामद की जाती हैं। 10% अफराद ज़राअत से वाबस्ता हैं। अब समुद्री खारा पानी साफ करके तरकारियों और फलों की पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। कतर चूँकि एक गर्म रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और नाग मेहनी कुदरती नबातात हैं। नखलस्तान में अलबत्ता खजूर के दरख्त काफी तादाद में पाए जाते हैं। अगर कतर की सनतों के बारे में, तो यहाँ तेल के अलावा सबसे ज्यादा तरक्की सीमेंट की सनत में हुई है। उम्मे बाब सीमेंट प्लांट अहम सीमेंट प्लांट है। सिट्रा के मकाम पर वाक़े कारखाने में मकामी और सऊदियों से आया हुआ तेल साफ किया जाता है। अलावा अजी फौलाद, आटा, एल्यूमिनियम की सनतें भी कायम की गई हैं। मुल्क की आबादी का 75% हिस्सा सनतों और तिजारती इदारों से वाबस्ता है। अजीज तलबा, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने मुल्क कतर के वसाइल पर गुफ्तगू की। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने मुल्क कतर के हिस्सा अव्वल पर गुफ्तगू की। हमारे सबक का पहला पॉइंट मुल्क कतर का महल वक़ू और इसका जोग्राफी खुदुखाल था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के रकबे के बारे में पढ़ा। आज के सबक का हमारा अगला पॉइंट इस मुल्क की आबादी और जुबानों पर मुश्तमिल था। इसी तरह आज के सबक के अंदर हमने मुल्क कतर के मज़ाहिब के बारे में पढ़ा और आज के सबक का हमारा सबसे आखिरी पॉइंट मुल्क कतर के वसाइल से मुतालिक था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।